السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین اما بعد. سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی کثیر تعداد میں آپ لوگ یہاں پر آئے. بے شک یہ اللہ کی محبت کی ہی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم پر ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے دین کے لیے اپنی محبت کے خاطر منتخب کیا، تب جا کر ایسی مجلس میں لا کر بٹھایا. اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. پیاری ماں اور بہنوں، ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے مجالسیں کیوں لگائی جاتی ہے. وقتاً فوقتاً، ہفتے در ہفتے ایسے مجلسوں کا آغاز کیوں کیا جاتا ہے؟ بہت ساری محنت کے بعد عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے ایسے مجلسوں کو کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ راہ راست پر آ جائے، ہماری قوم اللہ کے راستے پر آ جائے، اللہ والے بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے چاہتے ہیں اس طریقے سے بارہا ایسی مجلسیں لگنے کے باوجود بھی، پیاری ماں اور بہنوں، بارہا ایسی مجلسیں لگنے کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی عام ہو چکی ہے. معاف کیجیے گا لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ ہمارا معاشرہ بالکل بے حیا ہو چکا ہے. ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. ہمارا معاشرہ بالکل گناہوں کے سمندر میں غرق ہو چکا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے سمندر میں غرق ہو چکا ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس غرق آلود سمندر میں، اس گناہوں کے دلدل میں ہمیں گناہوں کی چبھن محسوس نہیں ہو رہی ہے. اس افسوس، گناہ کرنے سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود، گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود، فحاشی میں ملوث ہونے کے باوجود، بے پردہ گھومنے کے باوجود، اپنے نفس کو شیطان کے حوالے کرنے کے باوجود ہمیں اس گناہ کے سمندر میں ذرا سے بھی چبھن محسوس نہیں ہو رہی ہے. ہمیں کوئی گھبراہٹ، کوئی بے چینی محسوس نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس گناہ کے سمندر میں، اس آئے دن کیے ہوئے فحاشی میں ہم کو بڑا مزہ آ رہا ہے، ہمیں بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے. ہمارے اولاد کہاں جا رہی ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے جوان بچیوں نے گھر کا ماحول، ہمارے بستی کا ماحول، ہمارے خود کا ماحول بالکل رنگرلیوں میں اور فحاشی میں اور بے پردہ گھومنے میں اپنے آپ کو برباد کر دیا ہے. اس کے باوجود ہماری ماؤں کی ممتا کو ذرا سی بھی ٹھیس نہیں پہنچتی. آج جیسے مفتی صاحب نے بات کی، اس میں باقاعدہ بتائے کہ بچے کی تربیت میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے، ماں کا اصل کردار ہوتا ہے. ماں کو نسل کو تیار کرنا ہوتا ہے، ماں کا کام ہوتا ہے نسل تیار کرنا. باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کما کر کھلانا، ان کے ذمہ بھی تربیت ہوتی ہے، لیکن اصل تربیت ہوتی ہے ماں کے ذمہ، اصل تربیت ہوتی ہے ماں کے ذمہ. ماں کی گود میں ایک بچہ بن جاتا ہے. ماں جب اس کو گود سے بے دخل کرتی ہے، اپنی تربیت والی گود سے بے دخل کرتی ہے، تو وہ بچہ تربیت سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے. پیاری ماں اور بہنوں، ہم سب یہاں مائیں بیٹھے ہیں، جب بچے کو کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے. جب بچے کا پھٹا لباس دیکھتے ہیں تو ماں کی ممتا تڑپ جاتی ہے. جب بچے کے جسم پر کوئی ناخن بھی دیکھتے ہیں جو اسکول میں مستی کرتے وقت آتا ہے تو ہماری ممتا تڑپ اور لرز جاتی ہے. پیاری ماں اور بہنوں، ہم نے ان کو دین سے جو دور رکھا ہے، ہمارے بچے جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، کیا ہماری ممتا کو اس بات سے ٹھیس نہیں پہنچتی؟ کیا ہماری ممتا اس بات سے نہیں لرزتی کہ
चलो आज हम इरादा करते हैं हम पक्के मुसलमान बन जाए। हमारे बच्चों को क्या बनाना है? हमारे बच्चों को पक्का मुसलमान बनाना है। मुसलमान की पहचान क्या है? पक्के मुसलमान की पहचान क्या है? हम बच्चे को क्या बनाए, हम बच्चे को कैसा संवारे, हम बच्चियों को कैसे तरबियत दे? प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम इसका जवाब देता है कि बच्चों को मुसलमान बना। मुसलमान तो हम पहले से है, हमारे नाम आयशा फातिमा है, हम तो मुसलमान पहले से, हम पक्के मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ नाम के मुसलमान है। प्यारी माँ और बहनों, मुसलमान कहते हैं जिसके बात करने के तरीके से, जिसके पहनने ओढ़ने से, जिसके हर तर्ज अमल से इलाहियत झलके, जिसके हर तर्ज अमल से इलाहियत झलके, वो मुसलमान है। मैं और आप भी माँ है, हमको पता है हमारे बच्चों की तर्ज अमल से इलाहियत झलकती है। क्या हमारे बच्चे जब हमसे बात करते हैं, प्यारी माँ और बहनों, ममता तड़प जाएंगी ये सवाल पूछते के साथ, क्या मेरे और आपके बच्चे जब हमसे बात करते हैं, क्या उनकी ज़बान से इलाहियत झलकती है? क्या उनके ज़बान से अल्लाह वाला पन झलकता है? क्या आज जिन बच्चों की उंगलियों को पकड़कर उन्हें हमने चलना सिखाया, जिन बच्चों के उंगलियों को पकड़कर हमने उनको दुनिया दिखाई, क्या मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आज वो बच्चे हमारे आंखों के सामने उंगलियां नचाकर बात नहीं करते? क्या उस वक्त हमें तकलीफ नहीं होती? उनको दुनिया, उनकी दुनिया बनाने में हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनको आला से आला दर्जे पर हमने फाइज कर दिया, उनको आला से आला तालीम दिलाने की हमने हर जद्दोजहद की, उनको आला से आला तालीम दिलाने के लिए हमने लोगों के बर्तन धोए, हमने झाड़ू पोछा किया, लेकिन वो तालीम से हमने उनको महरूम रखा जिससे खुदा याद आता है, जिससे अल्लाह याद आता है, जिससे जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। प्यारी माँ, हमने क्या कर दिया? हमने हमारे ममता के आड़ में, हमने हमारे प्यार के आड़ में, हमने हमारे औलाद की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया। प्यारी माँ और बहनों, आज अगर कहा जाता है, जरा गौर से सुनिए, कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद जो बच्चा मोहब्बत से अपनी माँ को सिर्फ एक नजर देखता है, मोहब्बत की नजर से सिर्फ देखता है, उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती। खिदमत नहीं, पैर दबाना, हाथ दबाना, खिदमत करना नहीं, सिर्फ सुबह उठकर अपने माँ बाप की जियारत करना है। प्यारे माँ और बहनों, ये खिदमत का तो छोड़िए, खिदमत का तो छोड़िए, आज दुनिया के चकाचौंध अंधेरे ने हमारे औलाद को हमारी तरफ देखने की भी फुर्सत बाकी नहीं रखी। इसमें औलाद के साथ साथ हमारे माओ का भी कसूर है। हमने कभी उनको अल्लाह सिखाया ही नहीं, हमने कभी उनको हलाल और हराम सिखाया ही नहीं, हमने कभी उनको बताया ही नहीं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये सवाब है। हमने तो उनको ला कर दिया, हमने तो उनको ला कर दिया ताकि वो दुनिया के सामने अच्छे से अच्छा बन जाए। हमने उनके एजुकेशन की खातिर, हमने उनके बुरके को उतरना पसंद किया, हमने उनके एजुकेशन की खातिर उनके जोड़े हुए हाथ पसंद किए, हमने उनके एजुकेशन की खातिर उनको मर्दाना लानत वाला लिबास तक पहना दिया ताकि वो बड़ा ओहदेदार बन जाए। जब वो ओहदेदार बन गया, जब वो बड़ी चेयर वाली, जब वो व्हील वाले चेयर पर बैठ गया, तो उसने माँ से कहा कि माँ, जब मेरे ऑफिस में आओगी तो अच्छा तैयार होकर आना। उस वक्त मेरा स्टाफ तुमको देखकर मेरी माँ कहलानी चाहिए, अच्छे कपड़े पहन कर आना, अच्छे बाल वगैरह बना कर आना। उस वक्त माँ कलेजे पर हाथ रखकर वो सारी चीजें, वो लोगों के बासे बर्तन याद आते हैं, झाड़ू पोछा याद आता है, हमारी तरबियत में कोताही रहेगी। हमने उनको दुनिया तो बहुत सिखाई। प्यारी माँ और बहनों, प्यारे माओ, मैं आपसे मुखातब हूँ, क्या आपको अपनी बिल्कुल खुले अंदाज में बोलने के लिए कहा है, क्योंकि मजमुआ बहुत बड़ा है, सब माए मौजूद है। एक बात भी अगर हमारे इस दिल में उतर गई तो हिदायत का रास्ता आसान हो सकता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आज अगर हमारी बेटी घर से बाहर निकलती है तो उसके खुले चेहरे को देखकर, उसके खुले पीठ को देखकर हमें तकलीफ होती है कि आज कितनी सारी हवस भरी निगाहें, कितनी सारी भूखी निगाहें मेरी बेटी के सीने का तवाफ करेंगी, मेरे बेटी के गर्दन का तवाफ करेंगी, और वो सीना, वो गर्दन, वो पीठ कल कयामत के दिन जहन्नम में इस तरीके से जलेंगी जिससे उसको निकाला नहीं जाएगा। प्यारी माँ और बहनों, जब बच्चे स्कूल
तब से हम उसका सामान जहेज का इंतजाम करते हैं, तब से हम उसके सामान जहेज का इंतजाम करते हैं, ताकि ससुराल में उसको कोई तकलीफ ना हो, ताकि ससुराल में उसको कोई तकलीफ ना हो। जेवर बनाना बचपन से स्टार्ट, और कपड़े और न जाने कौन सी चीजें हम बचपन ही से तैयार करना शुरू कर देते हैं। क्या हमने कभी इस बात की फिक्र की है? आज दिल पर हाथ रखकर सुनिए, आज बसीरत के कानों से सुनिए, आज हिदायत वाली मजलिस में आए हैं, आज यहाँ से तब्दील होकर लौटेंगे, आज यहाँ पर हमारी ममता को अल्लाह के हवाले करके लौटेंगे, आज यहाँ से हम अपनी ममता को तब्दील करके लौटेंगे। सारे उनकी शादी के जेवरात लॉकर में मौजूद है, सारे उनकी जमा की हुई चीजें मौजूद है। हम फाके पे फाके, हम अपने आप को भूखा रखकर उनके अज़वाज जिंदगी की तैयारियों में मशगूल है। क्या हमने कभी वो तालीम दी? कभी उनके माथे पर झुंबर सजाने के लिए हमने बिंदी का इंतजाम किया, लेकिन उनके सरों पर सजदों के निशान लाना भूल गए। उनको हर तरीके से लिबास पे लिबास ला कर दिया, लेकिन तकवे का लिबास पहनाना भूल गए। उनके लजीज जबान से हर मांगी हुई चीज लाकर उनको खिलाई, लेकिन उनको मीठे बोल बोलना भूल गए, सिखाना भूल गए। प्यारी माँ और बहनों, निकाह से पहले तो इन मोहब्बत एक लड़की उसके अपनों की मोहब्बत से पहचानी जाती है, लेकिन निकाह के बाद वो एक लड़की अपने अखलाक से पहचानी जाती है। क्या मेरे और आपके औलाद के अखलाक कितने उम्दा हैं कि वो किसी और के घर को जाकर सवार सके, किसी और के घर को जाकर निहार सके? प्यारी माँ और बहनों, क्यों मेरे और आपकी बच्चियां हमसे ऊंची आवाज से बात करती है? क्यों मेरी और आपकी बच्चियां हमारे आवाज देने के बाद झुंझला कर जवाब देती है? क्योंकि उन्हें अल्लाह पता ही नहीं है, उन्हें सूरह बनी इसराइल पता ही नहीं है कि जिसमें कहा गया है कि अगर तुम अपने माँ बाप को उफ कर भी कहो, तुम अपने माँ बाप को उफ दुनिया का सबसे छोटा लफ्ज है अलिफ और फा, अगर तुम अपने माँ बाप को उफ करके कहो तो उसी वक्त तुम्हारे लिए जहन्नम वाजिब हो जाती है। ये कभी हमने हमारी औलाद को बतलाया ही नहीं। हमारे माँ बाप सबसे ज्यादा बदकिस्मती मेरी माँ ये है कि हमारी औलाद से हम डर रहे हैं, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते। आज अगर कोई बुरी औरतें यहाँ पर है, आज बेटे से डरते क्यों? बहू से डरते क्यों? आज हमसे क्यों लोग डरते हैं? आज हमारे बड़े हमसे क्यों डरते हैं? आज हमने जिनको 25 साल 30 साल अपनी मेहनत से बड़ा किया, अपने दूध को, अपने खून को दूध की शक्ल में उनके मुंह में उतारा, आज उस औलाद से हम डर रहे हैं। इसकी क्या वजह है? माँ, आज हमारी कोताही ने पूरे माशरे को बर्बाद और तबाह कर दिया। काश हमने दीन का माहौल घर में जिंदा किया होता, काश हमने दीन का माहौल जिंदा किया होता। आज आईने के सामने मेरी और आपकी बच्ची खड़ी है और अपने चेहरे को रंग रही है, अपने होठों को रंग रही है, अपने दुपट्टे के 4 और 5 फोल्ड कर रही है, लेकिन मेरी और आपकी ममता उस पर हंस रही है और तालियां बजा रही है कि इस चेहरे को देखकर अल्लाह मुंह फेर रहा है, इस चेहरे को देखकर जहां कब्र के सांप और बिच्छू, सुनिए तो सही, ये जिस चेहरे को देखकर आप तारीफें कर रहे हैं, मैं मेरी बच्ची की तारीफ कर रही हूँ, उस चेहरे को देखकर कब्र के सांप और बिच्छू खुश हो रहे हैं। एक सांप दूसरे सांप से कहता है कि देखो अपनी गिज़ा तैयार हो रही है, देखो अपनी गिज़ा तैयार हो रही है, ये रंगे हुए आंखें, ये रंगे हुए होठ और गाल, ये तमाम हमारी गिज़ा है, ये कब्र के सांपों की गिज़ा है, ये जहन्नम की आग की गिज़ा है। खुदारा इससे बचिए, खुदारा इससे बचिए। जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा कि जिस चेहरे पर किसी नामहरम की नजर पड़ती है, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर लानत बरसाते हैं। लानत कहते धुतकारी हुई औरत को, जिससे सब लोग, जिस लानत किए हुए ऊंट से जब सब लोग दूर रहते थे, जानवरों को दूर रखते थे, अगर हम पर अल्लाह की लानत बरस रही है तो हमारा रुतबा, हमारा मर्तबा अल्लाह के नजदीक क्या होगा, हम ये बराबर हिसाब लगा सकते हैं। प्यारी माँ और बहनों, आज दुनिया में क्या हो रहा है उससे बखूबी आप भी वाकिफ है। किसी, माफ कीजिएगा कहना जरूरी है, अगर किसी और की बच्ची
मोबाइल के रिचार्ज पर हमने चेहरा खोल दिया, चंद नोटों के लिए, चंद सिक्कों के लिए हमने अपने आप को किसी के सामने पेश कर दिया। प्यारे माँ और बहनों, ये हो रहा है। हमारी बच्चियां एक रिचार्ज के लिए बिक गई है, हम एक ड्रेस के लिए बिक गए हैं। ऐसा लगता है कि चार दीवारी के अंदर कर रहे किसी को पता नहीं चलता, लेकिन खुदारा इस चीज से बचिए, इन चीजों से, फहाशे से बचिए, गैर महरमों से बेतकल्लुफाना गुफ्तगू करने से बचिए। हर दुकान वाला अपना भाई और दोस्त बन जाता है, हर रिक्शा वाला अपना भाई और दोस्त बन जाता है, जबकि आपको पता है हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली बेटी, जब एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अपनी बेटी को सीने से लगाया और कहा, कल ईद है, क्या तुमने ईद का चांद देखा? हर बयान में मैं ये बात बताती हूँ कि क्या तुमने ईद का चांद देखा? मेरे लगते जिगर, तुमने ईद का चांद देखा? कल ईद है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ने सर झुकाकर क्या जवाब दिया? मेरी और आपकी दिल को थोड़ा तो भी तकलीफ होनी चाहिए इस बात से। फातिमा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया, ए मेरे अब्बा हुजूर, मैंने ईद के चांद पर नजर नहीं डाली। अब्बा हुजूर ने कहा, क्यों मेरी लगती जिगर? कहा कि मैं आपकी बेटी हूँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये गवारा नहीं करती कि जिस चांद पर नामहरमों की नजर होगी अभी, उस वक्त आपकी बेटी भी उस चांद पर देखे। ये हया है, ये पाक दामनी है, ये पाक दामनी हमको इस्लाम ने सिखाई है। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा रज़ी अल्लाह बैठे हुए थे और एक नाबिना शख्स वहां पर दाखिल होते हैं, जो अंधे होते हैं, वो वहां पर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह से कहते हैं कि यहाँ से उठकर अंदर चले जाओ। आयशा रज़ी अल्लाह ने कहा, ये तो नाबिना है, ये तो मुझको नहीं देख सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, वो नहीं देख सकते, लेकिन तुम तो देख सकती हो, प्यारी माँ और बहनों, चेहरा खुला रखते हो, क्यों नहीं तकलीफ होती? अल्लाह हमारे चेहरे पर नहीं देखेंगे। प्यारी माँ और बहनों, जिस चेहरे को संवार रहे हैं और नामहरमों के सामने पेश कर रहे हैं, अल्लाह की कसम खाकर बोलती हूँ, अल्लाह इस चेहरे पर नहीं देखेंगे जिस पर बहुत सारों की नजर पड़ी है। अल्लाह उस जिस्म पर नहीं देखेंगे जिस पर बहुत सारों की नजर पड़ी है। उसको वक्त है छुपा लो, अल्लाह मुंह फेरने से पहले छुपा लो। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मेरे तौबा का दर पूरा वक्त खुला है, लेकिन अफसोस कि तौबा करने वाला कोई नहीं। आपको पता है, जैसा एक प्यासे को पानी का इंतजार नहीं होता, जैसे एक भूखे को खाने का इंतजार नहीं होता, जैसे एक नंगे फटे पहनने वाले को कपड़े का इंतजार नहीं होता, उतना मेरे और आपके रब को हमारी तौबा का इंतजार है। उतना मेरे और आपके रब को तौबा का इंतजार है। क्यों नहीं हमारे हाथ उठते? आपको पता है, एक छोटा सा बच्चा होता है, वालिदैन टीचर होते हैं और किसी बच्चे के पेपर चेक करते वक्त माँ रोने लगती है और टीचर जो होती है वो रोने लगती है। तो उसके शौहर मुझसे सवाल करते हैं कि आप पेपर चेक करते हो, क्यों रो रही हो? कहता है, पेपर में एक सवाल था कि आप क्या बनना चाहते हो। पेपर में एक सवाल था कि आप क्या बनना चाहते हो? तो उस मासूम ने लिखा है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, मैं मोबाइल बनना चाहता हूँ, ताकि हर कोई मुझको अपने पास रखे, ताकि मेरे माँ बाप मुझको अपने पास रखे, जहां भी जाए मुझको अपने साथ रखे। तो शोहर ने कहा कि इसमें रोने की क्या बात है? कहा कि वो कोई और नहीं, मेरा और आपका बच्चा है। वो कोई और नहीं, मेरा और आपका बच्चा है। अगर हमारे हाथ में मोबाइल है, कहीं आग भी लग गई तो हमें पता नहीं चलता, हमारे बच्चे गिर पड़ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। एक ही जगह पर बैठकर सबके अपने अपने पर्सनल फोन होते हैं। कैसे हम किस वक्त हम तरबियत करें हमारे बच्चों को? मासूम से पैम्पर पहनाकर 2.5 साल की उम्र में उनको रोता बिलबिलाता स्कूल की वैन में डाल देते हैं। जब वो थका 1 या 2 बजे आता है तो उसको अपने हाथों से खिलाते हैं, मोबाइल में देखते देखते, और उसके बाद हम उसको ट्यूशन भेज देते हैं। थका रात में आता है, फिर अरबी के मौलाना आ जाते हैं, अली बा जो भी पढ़ाते हैं और चले जाते हैं, उसके बाद उसी मुसल्ले पर वो सो जाता है। हमने उनको कौन सा वक्त दिया? हमने उनकी कौन सी तरबियत दी? स्कूल में तो 2 जमा 2 4 पढ़ाए उनको, स्कूल में उनको अल्लाह नहीं पढ़ाए, स्कूल में उनको ममता नहीं दिए, स्कूल में उनको वो सारी चीजें नहीं दिए जो जन्नत के लिए जरूरी
लोगों को पता है आज सिर्फ बच्चों का ही कसूर नहीं है, आज हमारे माँ बाप का भी कसूर है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा महबूब हस्ती कौन सी है। जिन अल्लाह तबारक व तआला को सबसे महबूब हस्ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह जहाँ आता है वहाँ फौरन आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी सबसे अजीम हस्ती इस दुनिया के अल्लाह के बाद है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह को चाहिए था, सब माओ कान खोल कर सुनो, अल्लाह को चाहिए था कि अल्लाह अपनी जन्नत जैसी नायाब चीज, जिसको जिस जन्नत को रोजाना सोने और चांदी से पॉलिश किया जाता है, जिस जन्नत को रोजाना सोने और चांदी से पॉलिश किया जाता है, ऐसी जन्नत जिसका किसी आंख ने तस्वीर नहीं किया, जिसका किसी दिमाग ने सोचा भी नहीं, जो कोई वहम और गुमान भी वहां तक पहुंच नहीं सकता। जन्नत की नेमतें कितनी हसीन है प्यारी माँ और बहनों। जन्नत जैसी नायाब चीज अल्लाह तबारक व तआला को चाहिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काली कमले में रखे। जन्नत जैसी नायाब चीज अल्लाह को चाहिए था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में उतारे, जिसमें कुरान उतारा गया था। लेकिन नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत जैसी नायाब चीज को माओ के कदमों के नीचे रखा। जन्नत जैसी नायाब चीज को माओ के कदमों के नीचे रखकर कहा कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को झुकना सिखाए। दिल में नहीं रखा, जन्नत को दिल में नहीं रखा, जन्नत को सर पे नहीं सजाया, जन्नत को कदमों के नीचे रखा ताकि औलाद झुकना सीखे, ताकि औलाद वालिदैन के सामने झुके रहे। कौन से ऐसे माँ बाप है, कौन से ऐसे माँ बाप है जिनकी औलाद उनकी आवाज देने पर आजिज़ी से जी कहती है? कौन से ऐसे औलाद है झुक कर बात करती है? कौन से ऐसे औलाद है जो वालिदैन से कभी भी बेअदबी से बात नहीं करती? कितने बड़े बड़े वालिदैन के लिए और औलाद की तरबियत पर कितने बड़े बड़े वादे किए हुए आप लोगों को पता है। एक नौमान बिन हासा नामी सहाबी है, वो मदीना में कुरान पढ़ते थे। वो अच्छे से सुनिए, वो मदीना में कुरान पढ़ते थे, सुभान अल्लाह, उनकी आवाज जन्नत में सुनाई देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में उनकी आवाज को महसूस किया और कहा कि ये तो नौमान की आवाज है, ये तो मदीना में कुरान पढ़ रहा है। मालूमात लेने के बाद पता चला कि इतनी बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सआदत इसलिए नवाजी, मदीना में कुरान पढ़ने की आवाज जन्नत में सुनाई देती थी। मालूमात लेने के बाद पता चला कि ये माँ के फरमाबरदार थे, ये माँ के फरमाबरदार थे, ये माँ के फरमाबरदार थे। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको इतनी बड़ी सआदत से नवाजा था। प्यारी माँ और बहनों, प्यारी माँ हमने क्या कर दिया, प्यारी माँ हमने क्या कर दिया? हमारी ममता को हमारी औलाद की मोहब्बत के आगे खत्म कर दिया, वो हमारी ममता का खात्मा कर दिया। इस ममता की पूछ होने वाली है। ये जो अल्लाह तबारक व तआला ने मैं और आप कहते हैं कि औलाद दुनिया की सबसे कीमती नेमत है। मैं और आप कहते हैं कि औलाद दुनिया की सबसे कीमती दौलत है, जिसका कोई मोल नहीं, जो किसी के हाथ में नहीं, जिसका कोई तोल नहीं। लेकिन जब वही औलाद इंसान की गोद में आ जाती है, वही औलाद जब इंसान की गोद में आ जाती है, तो वो कीमत और कद्र कैसे भूल जाते हैं। अगर असल कीमत और कद्र हमको होती तो हम हमारी औलाद के दीन के हिसाब से परवरिश करते, हम हमारी औलाद के दीन के हिसाब से परवरिश करते। प्यारी मामा और बहनों, कि ये बात गलत है कि हम औरतों की वजह से, हम लड़कियों की वजह से, मुझे आपका जवाब चाहिए कि ये बात गलत है कि आज हम औरतों की वजह से, हम लड़कियों की वजह से हमारा माशरा खराब हो चुका है। किसी औरत को ये कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है कि माहौल खराब हो गया है, माहौल खराब हो गया, ऐसा कहने का किसी को हक नहीं है। इसलिए कि माहौल खराब पत्थरों ने नहीं किया, माहौल खराब दरख्तों ने नहीं किया, माहौल को खराब कर दिया है हम औरतों ने। हम औरतों ने हमारे खुलेआम घूमने से, हमारे बेपर्दा घूमने से, आज हमारी फहाशी की वजह से, हर मर्द माफ कीजिएगा लेकिन कहना जरूरी है, एक 10 साल के लड़के के अंदर भी शहवत जाग उठी, 10 साल के लड़के के अंदर भी शहवत जाग उठी। उसके अंदर शहवत क्यों जाग उठी? उसने ऐसा क्या देखा? हमारा गंदा नाच देखकर, हमारा गंदा नाच देखकर
के लिए कहा है, क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में इतने हम फहाश हो जाएंगे, इतनी गंदी सोच और गंदे लिबास और गंदे किरदार वाले हो जाएंगे कि कहा जाता है, आज मैं इस बात को कहने से नहीं डरूंगी और हर जगह पर मैं ये कहती हूँ कि जिस एक बाप के लिए बेटी दुनिया के सबसे अजीम लाड और प्यार के एतबार से एक अजीम नेमत हुआ करती थी। जब बेटी पैदा होती थी तो बाप खुश होता था और बेटे की पैदाइश पर माँ खुश होती थी। कितना अजीब माहौल हो गया है, कितना अजीब माहौल हो गया है। आज हमारे घरों में, मेरे और आपके घरों में एक बेटी बाप से महफूज नहीं है, एक बेटी बाप से महफूज नहीं है, एक भतीजी चाचा से महफूज नहीं है, एक भांजी मामू से महफूज नहीं है, एक बहन भाई से महफूज नहीं है। हर वक्त हम मर्द को ही पापी कहते हैं, हर वक्त हम मर्द को ही गलत कहते हैं, लेकिन हाँ, मर्दों की भी गलती होती है। लेकिन अगर हम बापर्दा रहे, अगर हमारे इस्मत की कोई चीजें, हमारी हया की कोई चीजें, हमारे छुपाने की कोई चीजें दिखाई ही ना दे, तो क्यों लोग पाप पर उतर आए, क्यों लोग शहवत पर उतर आए? जवाब दीजिएगा। अगर हमने आज इस मजलिस में, आज ये किसी के घर का कंपाउंड नहीं है, आज ये एक तौबा की मजलिस बन गई है, आज फरिश्ते चारों तरफ से हमको घेरे हुए हैं। आज माफ कीजिएगा, जो जो खुले चेहरे से आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इंतजार कर रहे हैं कि आज काश कोई बात दिल में उतर जाए और उस चेहरे पर पर्दा पड़ जाए। प्यारी माँ और बहनों, कफन से चेहरा लपेटने से पहले इन हाथों से बहुत सारे चेहरे को कफन में छुपा चुकी हूँ। वो वक्त बहुत ही खतरनाक होता है। उस कफन वाले चारपाई के पीछे औलाद गिरगिरा रही है, माँ माँ कहकर आवाज दे रही है, कोई बहन बहन के लिए रो रही है, कोई बहू सास के लिए, सास बहू के लिए, कोई वालिदैन औलाद के लिए। लेकिन अल्लाह ने मोहल्लत नहीं दी, अल्लाह ने मोहल्लत नहीं दी। वो बेरंग सा एक कपड़ा, वो बिना सिलाई का एक कपड़ा, जिसको एक अच्छे खासे हम शलवार में भी अच्छे किस्म की नाड़ी डालते हैं, लेकिन मैयत को लपेटने के लिए ऐसी सादा सी एक नाड़ी होती है, एक सादा सा एक कफन होता है जिसपे डिजाइन तक नहीं, और अच्छा खासा कोई अच्छी कीमत वाला कपड़ा भी नहीं होता, जैसे पायजामे कुर्ते का, शर्ट वगैरह का कपड़े व्हाइट होते, वैसा भी नहीं। एक ऐसा हल्का सा कपड़ा होता है जिसमें पानी तक जज्ब नहीं होता। इतना सादा सा कफन पिनाकर हमारे चेहरे को बंद कर दिया जाएगा। हम गौर करेंगे कि अभी कब्र की मिट्टी में ही डालना है, तो चेहरे को बंद करने की क्या वजह है? चेहरे को बंद करने की क्या वजह है? जैसे हम दीदार करने के लिए थोड़ा सा चेहरा खुला रखते, वैसे भी तो कब्र में उतारा जा सकता है। लेकिन नहीं, अल्लाह ने फरमाया कि पूरा सर से लेकर पांव तक एक जिस्म का बाल तक नजर ना आए जब मेरे सामने पेश। अगर मुर्दा इंसान, अगर मुर्दार औरत इन हाथों ने 300 से 400 गुसल लिए हैं, जरा सी लापरवाही होती है, अगर पानी लेने नीचे झुका भी जाता है तो गर्दन किस तरफ चली जाती है, हाथ नीचे गिर जाते हैं, पैर किस तरफ हो जाते हैं। ऐसा बेसुध इंसान गिर जाता है, उसके बावजूद उस औरत को कोई औरत जख्मों से चूर है, कोई औरत किसी के मुंह से खून, किसी के नाक से खून, इसके बावजूद उसको मोहब्बत नहीं दी गई। उसको सफेद कपड़े में लपेट कर कब्र के आगोश में जाकर सुलाया जाता है। मुझको और आपको भी कब्र के आगोश में सुलाया जाएगा। जब कफन से चेहरा छुपाने से पहले और इरादा करें कि मेरा, आपका और हमारी तमाम बच्चियों के चेहरे को हम नकाब से छुपा ले, ताकि कोई नामहरम उसकी तरफ ना देखे, ताकि अल्लाह ताला हमारी बच्चियों की तरफ से अपना रुख ना मोड़ ले। उम्र का कोई भी मरहला है, बचपन से लेके मरने तक हम अपने आप को छुपा ले, ये दुनिया की गंदगी से अपने आप को पाक कर ले, अपने औलाद को पाक कर ले, उनको अपने पास बिठाकर उनको अल्लाह वाला बनाए, उनको अल्लाह की तालीम दे,
مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنی جوان بچیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی جوان بچیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی جوان بچیوں کی حفاظت کیجیے۔ انہیں کو اگر اچھا بنائے، انہیں کو اگر اچھا بنائے، اس معاشرے میں بہت خوب کام کریں گی، اور وہی اگر بگڑ گئی تو بہت خسارہ ہے، بہت بربادی ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے آج کالجز کا کیا حال ہے؟ ہمارے گھر سے ہم کو اللہ حافظ کہہ کر ہماری بچی چلی تو گئی، وقت پر لوٹ بھی آئی، لیکن مجھے اور آپ کو کیا پتا، مجھے اور آپ، اللہ ہماری تمام بچیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، ان سے کوئی بھی ایسا کام نہ کروائے جس سے ہماری گردن کو کبھی نیچے جھکنا پڑے۔ لیکن پھر بھی یہ ساری چیزیں مجموعے میں کہنی جیسی نہیں ہے۔ آئے دن کالجز میں بلاتے ہیں، آئے دن اسکولوں میں بلاتے ہیں کہ آ کر کچھ دن کی باتیں بتائے، کیونکہ اتنا خراب ماحول ہو گیا ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، آج یہاں پر بیٹھ کر ہم ارادہ کر لیں، ہماری عمر کوئی بھی ہے، ہمارے بچوں کی عمر کوئی بھی ہے، جیسے مفتی صاحب نے ابھی بتایا کہ عمر کا لحاظ نہیں ہے، لڑکی عورت ہے، لڑکی کتنی ہی چھوٹی ہے، اس کو بچپن ہی سے اس کو عزت اور عصمت کا لباس پہنائے، جس کو بچپن ہی سے عزت اور عصمت کا لباس پہنائے، ایسا لباس پہنائے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو 7 سال سے کیوں ہم سب نے سنے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارو وغیرہ وغیرہ۔ تو بچے کو 7 سال کے بعد نماز پڑھنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے، 7 سال تک تم ان کو اپنے گود میں رکھ کر ان کی تربیت کرو، جب ان کو خود نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی، 7 سال تک ان کو اللہ سکھاؤ، اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ کا خوف سکھاؤ، اللہ کی محبت کیا ہے وہ بتاؤ، کہ وہ 7 برس میں خود سے نماز پڑھنے والے بن جائے۔ لیکن افسوس، کتنی اذانیں ہو کر چلی گئی، اور آخر میں وہ نماز پڑھی جاتی ہے جس کی کوئی اذان نہیں ہوتی، آخر میں ہم کو سامنے رکھا جاتا ہے اور وہ نماز پڑھی جاتی ہے جس میں کوئی اذان نہیں ہوتی، اس نماز کو نماز جنازہ کہا جاتا ہے۔ بالکل 2023 کے کیلنڈر میں اللہ سب کی عمر کو لمبی کرے، اعمال صالح کے ساتھ ہمارے اور ہمارے سارے اپنوں کی عمر کو لمبی کرے، لیکن 2023 کے کیلنڈر کے کس ورق پر، کس پیج پر ملک الموت آ کر ہمارے دروازے کو کھٹکھٹائے ہم کو پتا نہیں ہے۔ نہ ہمارے بینک بیلنس کو ختم کرنے کی مہلت دیں گے، نہ ہمارے جمع کیے ہوئے کپڑے پہننے کی مہلت دیں گے، نہ ہمیں اولاد کی طرف ایک مرتبہ محبت سے دیکھنے کی مہلت دیں گے۔ وہ وقت آنے سے پہلے سنبھل جانا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے سنوارنا ہے خود کو اور خود کے گھر کو، خود کے گھر کو ڈوبنے سے بچائیے گا، خود کے گھر کو ڈوبنے سے ایسے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ ارادہ کریں گے، انشاءاللہ ارادہ کر رہے نا کہ انشاءاللہ ہم پردے کی پابندی کریں گے اور اپنے اولاد کو ایسی تربیت دیں گے انشاءاللہ، اور اولاد بھی، جوان لڑکیاں بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بھی چاہیے کہ والدین کی فرما برداری کرے، ان کو بھی چاہیے کہ والدین کا کہا مانے۔ والدین اگر کہا جاتا ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہے تو ان کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، والدین اگر کافر بھی ہے تو ان کی بھی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ
آپ سب کی خدمت میں حاضر کر فرمایا کہ میں نے میرے والدہ کو کندھے پر بٹھا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرایا. میں نے میرے والدہ کو کعبۃ اللہ کا طواف کندھے پر بٹھا کر کرایا. کیا میں نے میری والدہ کا حق ادا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ تم کو پیدا کرتے وقت تمہاری ماں نے جتنی آہیں بھری تھی اس ایک آہ کا بھی حساب اب تک ادا نہیں ہوا ہے. تم نے پیشاب کر کے بستر کو گیلا کیا، تمہاری ماں نے خود کو گیلے میں سلا کر تم کو سوکھے پر سلایا، اب تک تم نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. پیاری ماں کعبۃ اللہ کا طواف کندھے پر بٹھا کر ہم نے 70-80 ہزار ختم کر کے ماں باپ کو حج کا عمرہ کرایا تو واہ کے لیے پورے گاؤں میں یہ کرتے ہیں کہ والدین کو عمرہ کرایا، والدین کو عمرہ کرایا. آج 2000 اور 5000 والدین کو گاؤں میں بھیج دے کر ہم سٹی میں عیش کر رہے ہیں. وہ بوڑھے آپ کو پتا ہے وہ بوڑھے خواہش کرتے ہیں کہ کاش سال میں 10 عیدیں ہوتی، کاش سال میں 10 عیدیں ہوتی، میرے بچے بہو اور ناتی پوتی کیا ہے 10 مرتبہ گاؤں میں ہمارے پاس چلے آتے، 10 مرتبہ گاؤں میں ہمارے پاس چلے آتے. ہم نے تو اپنے اپنوں کو ہی چھوڑ دیا، ہم نے اپنے آپ کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیا. ہم نے آج کون سے ماں باپ ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے میں سے 10% بھی یہ جواب نہیں دے سکتے کہ رات کے وقت جب میں بستر پر چلی جاتی ہوں تو میری بچی آ کر میرے قدموں کو دباتی ہے. اپنے جنت کو تلاش کرو، اجتماع میں جا کر، مجموعے میں جا کر اور یہاں وہاں جا کر جنت کو مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں جنت دے دے. جنت تو گھر پر پڑی ہے، جنت تو گھر پر پڑی ہے اور اس کو ہم نے ٹھکرایا اور دعاؤں میں جنت کو مانگ رہے ہیں. گھر میں جنت ہے اس کو تلاش کرو بچیوں، گھر میں جنت ہے اس کو تلاش کرو بچیوں. اپنے بول کو نرم کرو بچیوں، اپنی زبان کو نرم کرو بچیوں، اپنے والدین کی فرما برداری کرو بچیوں تاکہ آخرت بن جائے، تاکہ آخرت بن جائے، تاکہ آخرت بن جائے. بچیوں اپنے ماں باپ کی قدر کرو. وہ وقت آنے سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے کہ ان کے دیدار کو ترس جاؤ، ان کے دیدار کو ترس جاؤ. وہ وقت آنے سے پہلے جب شادی بھی ہو جاتی ہے تب بھی ماں کی بہت یاد آتی ہے. تو ماں دنیا سے رخصت اللہ نہ کرے ہو جائے، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے، اس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گے. آج تو کوئی ترستا بھی نہیں ہے. آج تو درد بالکل ہلکے ہو گئے ہیں، درد بالکل سستا ہو گئے ہیں، درد بالکل سستا ہو گئے ہیں. آج میرے اور آپ کی بھی یہی حقیقت ہے. آج میں اور آپ جب دفن ہوں گے ہمیں بھی لوگ بھول جائیں گے. ہم کو ایسا لگتا ہے کہ میں ہر مہینے میری بیٹی کو 3000 کا ڈریس دلاتی تھی، اس کے قدم زمین پر رکھنے نہیں دیتی تھی، اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی تھی. میرے مرنے کے بعد وہ مجھ سے وفا کرے گی، میرے مرنے کے بعد وہ میرے لیے قرآن پڑھ کر مجھ تک پہنچائیں گی. یہ آپ بھول جائیے، یہ میں بھول جاتی ہوں. آج ہم کس کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمارے لیے پڑھیں گی. آج تیسرے دن بریانی کھا کر ہنستے کھیلتے ہم کو سب بھول جاتے. تیسرے دن کا بھی آج کوئی انتظار نہیں کرتا ہے. آج جب میت ہوتی ہے تو پہلے ہی دن کفن آنے سے پہلے، جنازے کے ٹیبل آنے سے پہلے کیٹرس کا ٹیمپو آ جاتا ہے. کیٹرس کا ٹیمپو یہ ہمارے اور آپ کے درد کی کیفیت ہے، یہ ہمارے اور آپ کے درد کی انتہا ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے. ہم یہ بھول کیسے گئے کہ کوئی وفادار نہیں ہے، نہ اولاد وفادار ہے، کہ دنیا بے وفا ہے. اس دنیا کے لیے ہم نے ہمارے اللہ کو بھلا دیا، اس دنیا کے لیے ہم نے ہمارے اللہ کو بھلا دیا. جو اللہ ہم کو بالکل نہیں بھولا، جو اللہ ہم کو بالکل نہیں بھولا، جو رات کے اندھیرے میں بھولا. میں اور آپ بنا عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئے. وہ اللہ رب العزت کی محبت تو دیکھیے، وہ ہمارے اوپر نظر کر کے کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا. ہم سے کہہ رہا ہے جس کے نزدیک دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اے میرے
मोहब्बत करो, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत करो। कहाँ अल्लाह से मोहब्बत करते? ऐसा लगता है कि कलमा पढ़ लिए तो ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। नहीं, बल्कि अल्लाह वाली जिंदगी गुजारना ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। अल्लाह वाली जिंदगी गुजारना ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत है। अल्लाह की मोहब्बत पर गौर करिए। आज ऐसा नहीं है, आज आप जाकर किसी को बिना बताए मुसल्ले पे नमाज के बाद अल्लाह को धीमी आवाज में बिना आवाज के सिर्फ होठों को हिलाकर, अल्लाह मैंने आज तक बहुत गुनाह किए, आज तक मेरे चेहरे को बहुत लोगों ने देखा, तू गफूर रहीम है, तू माफ कर दे। अल्लाह अपने माँ को तक नहीं बताएगा, अल्लाह अपनी भाभी सास को भी नहीं बताएगा। अल्लाह कहता है तूने मुझे अल्लाह करके आवाज दिया, तूने मुझे तौबा के लिए पुकारा, मैं तुझको पिछले गुनाहों का ताना भी नहीं दूंगा, मैं तुझको पिछले गुनाह गिनवाऊंगा भी नहीं। तुम मेरी तरफ आई, मैंने तुझे माफ कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो सिर्फ इतना इरादा, पीछे का तू छोड़, पीछे का तू सोच मत, सिर्फ तो आगे न करने के पक्के इरादे से मुझको पुकार। मैं पिछले तू 40 साल की है, तू 80 साल की है, मैं तुझसे पूछूंगा भी नहीं कि तूने 80 साल में इतनी गुनाह क्यों की। तू आ, मेरा तौबा का दर खुला है, तू आ, मेरा तौबा का दर खुला है। तूने कितने लोगों ने तेरे गर्दन पर देखा, कितने लोगों ने तेरे सीने पे देखा, मैं तुझसे गिनवाऊंगा नहीं। तू आज मेरे दर पर आई है, मैंने तुझे माफ कर दिया। सिर्फ ये इरादा करके मैं आइंदा कभी नहीं करूंगी, मैंने तुझे ऐसा माफ कर दिया, मैंने तुझे ऐसा माफ कर दिया जैसा बच्चा माँ के पेट से निकलने के बाद पाक होता है। आज हम हर कोई असर की नमाज के बाद या मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ 5 या 10 मिनट मुसल्ले पर बैठकर इंशाअल्लाह हमारे सारे गुनाहों की माफी अल्लाह तबारक व तआला से मांगेंगे, इस यकीन के साथ इंशाअल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाहों को माफ करके आज से इस कंपाउंड को हम एक तौबा की मजलिस समझकर इंशाअल्लाह सबने अपने दिल में बोलिए और आज के असल से हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह, जिसमें गुनाह बशर है, खता तो होती ही है, इंसान है, गुनाह तो होंगी, लेकिन इंशाअल्लाह जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करेंगे और खासकर हमारे फहाशी, हमारी गलत चीजों को, हमारी बेपर्दगी को और हमारी फैशन को जरा कम कर देंगे और बच्चियां भी इस बात पर हड्डर्मी न करे। और इंशाअल्लाह हमारे लिए जन्नत है, हमारे लिए ऐसे ऐसे मेकअप की चीजें जन्नत में तैयार की गई, ऐसे बनाव सिंगार की चीजें जन्नत में तैयार की गई। ये दुनिया का मेकअप, इस दुनिया के मेकअप के लिए उस रब को भुला रहे हैं, इस दुनिया के लिबास के लिए, इस दुनिया के लेगिंग्स और जींस के लिए उस रब को नाराज। उसने तो कितनी हीरे जवाहरात से तुम्हारे लिए जींस तैयार करके रखी है। उसने तो हीरे, उसमें कपड़ा नहीं होता बच्चियों, उसमें कपड़ा नहीं होता, उसमें सिर्फ हीरे जवाहरात होते हैं, वो अपने लिए तैयार करके रखा। इस दुनिया के 200-400 रुपए और 1000 रुपए के लिबास के लिए उस रब को भुला दिए। आओ आज इरादा करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज इंशाअल्लाह नहीं करेंगे जिससे हमारा रब हमसे नाराज हो जाए इंशाअल्लाह। बोलो एक बार इंशाअल्लाह। उसके बाद मुख्तसर सी रमजान की फजीलत के बारे में बात करती हूँ कि अभी कुछ ही दिनों में तमाम महीनों का सरदार, इबादतों का सरदार माह रमजान निकलने वाला है और उसमें हमारा एक शेड्यूल होता है। सहरी करने के बाद, नमाज़े फज्र के बाद थोड़ी सी तिलावत कर लेते हैं और फिर ऐसी नींद मारते हैं कि 11 और 12 बजे उठते हैं। फिर उसके बाद मेरी और आपकी सबकी बात, फिर उसके बाद आज क्या पकाएंगे उसके रेसिपीज देखने के लिए यूट्यूब पर घुस जाते हैं। फिर कौन सा क्या बना है वो तय करने तक बच जाते 2 या 2:30। फिर चिकन पानी में डालने के बाद वहां पिघलने तक बच जाते 3 और फिर वो बनाने तक हो जाती है मगरिब। तो प्यारी माँ और बहनों, आपको ये बात पता है कि रमजान के महीने में जैसे कोई बिजनेस करता है तो हर बिजनेस का एक सीजन होता है, हर बिजनेस का एक सीजन होता है, हर चीज का एक वक्त होता है। और हर कोई कहता है कि हमारा इस आम के सीजन में आम वाले इस कदर बिजी हो जाते हैं, काजू के सीजन में या फर्नीचर के सीजन में, शादियों के सीजन में मंडप वाले, हर एक चीज का, हर बिजनेस का एक सीजन
بالکل बख्शिश का भी एक सीजन है, मगफिरत का भी एक सीजन है, वो है माह रमजान, वो है माह रमजान। आपको पता है आज हम एक नमाज, एक फर्ज एक दर्जा रखती है, रमजान में एक फर्ज 70 फर्ज का सवाब देती है, रमजान में एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। हदीस पाक का मफहूम है, रमजान में एक फर्ज 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। और निफल जो हम ये सुन्नत नमाजें पढ़ते हैं ना, चाश्त की, इसकी उसकी, जिसको निफल कहा जाता है, ये निफल का सवाब फर्ज के इतना मिलता है, निफल का सवाब फर्ज के इतना मिलता है। और हम उसको सोने में और ये वो बनाने के चक्कर में क्या करते हैं, वेस्ट कर देते। ऐसा क्यों ना ऐसा हो जाए, क्यों ना ऐसा हो जाए कि रमजान आने से पहले ही हम थोड़ी बहुत पूरे महीने में जो लगने वाली चीजें उसकी थोड़ी बहुत तैयारी करके रख ले। और हम हदीस हदीस में आता है कि सबसे बदनसीब बदकिस्मत इंसान वो है जिसने रमजान का महीना पाया उसके बावजूद उसकी मगफिरत ना हुई हो। जिसने रमजान का महीना पा लिया उसके बावजूद उसकी मगफिरत ना हुई हो, ये दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान है। प्यारी माँ और बहनों, इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे हम, रमजान का महीना जब रमजान का चांद दिखता है तो सारी शयातीन को कैद किया जाता है, वरना हम गुनाह करते हैं और इल्जाम शैतान पर लगाते हैं। शैतान ने बहकाया, शैतान के इसमें आए, तो ये बात भी नहीं हम कह सकते रमजान में कि शैतान ने करने नहीं दिया, बल्कि रमजान का चांद दिखते के साथ शैतान कैद हो जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद किए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और फरिश्ता ऐलान करता है, गुनाह करने वाले रुक जा, नेकी करने वाले आगे बढ़, है ना। तो इंशाल्लाह हम रमजान आने से पहले, रमजान की पहले से ही थोड़ी बहुत तैयारी करके रखेंगे। इफ्तारी वगैरह में जो चीजें लगती है कम से कम खाएंगे, बाद में रमजान होने के बाद या फिर अभी रमजान से पहले हम अच्छा अच्छा बनाकर खाए और थोड़ी इबादतों में ज्यादती करें। माफ कीजिएगा, कहने अच्छा नहीं लगता है, मेरी और आपकी क्या गारंटी कि अगले रमजान तक हम है या नहीं है, अगले रमजान तक हम है या नहीं। आज जिंदगी के 30 साल 40 साल गुजर गए, लेकिन पता नहीं चला कि मेरी और आपकी एक नमाज भी अभी तक कबूल हुई है या नहीं हुई है, मेरा और आपका एक सजदा भी कबूल हुआ है या नहीं हुआ है। चलो आज मिलकर इस बात का अज़्म करेंगे कि इंशाअल्लाह रमजान मुबारक को इस तरीके से गुजारेंगे। रमजान और तिलावत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। रमजान और तिलावत का बड़ा गहरा ताल्लुक है ना। अब पिछले ईद के वक्त जो हमने कुरान को गिलाफ में लपेट कर ऊपर उठा कर रखा है, उसको अब निकालने की बारी आई है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह, ज्यादा से ज्यादा वक्त हमारी कैसे बख्शिश होंगी। देखो खाना भी पूरा साल है, बच्चे भी पूरे साल है, शोहर भी पूरे साल, सारे इंसान पूरे साल है, पूरी दुनिया पूरे साल है। हम बख्शिश खुद की करा के लेंगे। कोई, मैंने जैसे इससे पहले आपको समझाया कि कोई भी किसी के लिए वफादार नहीं है बहनों, कोई भी किसी के लिए आज वफादार अल्लाह ताला अपनी वफादारी के लिए, अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के लिए माह रमजान भेज रहे हैं। उसको अपने घरों को ऐसा इबादतों से तर करेंगे, बेटियां हो बहुएं हो, सारे कामकाज को एकदम मामूली बना देंगे और इंशाल्लाह इबादतों की कसरत करेंगे, इबादतों में ज्यादती करेंगे इंशाल्लाह। और हमारे घर को इंशाल्लाह ईद के दिन, इस बात पर आप लोग इंशाल्लाह कहिए कि इंशाल्लाह इस ईद पर इंशाल्लाह अल्लाह हमारे सबके नाम लेकर हमारी बख्शिश का ऐलान करे इंशाल्लाह। ऐसा ही रमजान मुबारक हम गुजारेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो साहब। आज 3 लोगों ने आप लोगों के सामने बात की है।
आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला एक बात को करोड़ों दर्जे कबूल करे और हम सब की जिंदगियों को हिदायत के रास्ते पर लाए, हमको पर्दा करने वाला बनाए, हमको अल्लाह वाली जिंदगी गुजारने वाला बनाए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर सी दुआ होंगी नमाज